कितक सिख श्री गुर सौ कहै, देश गिरन कश्मीर जो है। तरकत पंडित तहाँ महानी, पढ़न देत नह सतगुर बानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास 5वें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज सतगुरु पंचम पिता श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का है प्रसंग है। गुरु जी का सिखां नूं उपदेश देना, उस उपदेश नूं कमाउण वाले सिख किन्नी करनी दे मालक होए और उहदे विचों कुछ साखियां जिहड़ियां ने वो इत्थे दर्ज ने। मेरी एक आप संगत नूं बेनती है कि टैलीफोन अज तुहाडे घर काम वाली कोल भी हैगा, तुहाडे ड्राइवर कोल भी हैगा, तुहाडे चौकीदार कोल भी हैगा, ते ये चेता रखना जिहड़ा कूड़ा चुकण आउंदा है ना तुहाडा उहदे कोल भी हैगा। एवें टैलीफोन कढ के ना बिया करो भी मेरे कोल टैलीफोन है, तो कूड़े वाले कोल भी है। वड्डी गल है भी की तुहानूं वरतन दी अकल है, ये बड़ी वड्डी शाबाश है। जिस बंदे नूं टैलीफोन वरतन दी अकल है, मैं समझदा भी वो अमीर है।
ਬਾਕੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰਕਸ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ, ਖਲੋ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ, ਵੈਸੀ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, 11:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 440 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਸੀ। ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਖੋ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝਪਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਝਪਟ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਰਾਤ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਓ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ।
ये तो निੱਘੀ ਥਾਂ ਤੇ बैठे ने, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ फिर इन्हां दी सुन लेना, क्योंकि ये बैठे निੱਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ने, इन्हां नूं की फर्क पैंदा है। ना खालसा जी, ये धर्म ही नहीं साडा। हुण भी तुसीं आए हो, कोशिश करो जदों तुहाडी वारी मत्था टेकण दी आ जाए उदों ही चेता रखना भी तुसीं उसे लाइन चों लग के आए हो, ते उत्थे खलोते तुसीं भी सोचदे सी कि मेरी वारी कदों आएगी। ते ध्यान रखना भी मगर होर भी हैगा जिहड़ा कह रहा भी मेरी वारी कदों आएगी। फिर कोशिश करो, सगों आके ना क्या करो, महाराज मेरी छेती छेती सुन ला, मेरे भरा होर भी हैगे ने, मगर उन्होंने भी आके अपनी बेनती करनी है। गुरु बड़ा खुश होएगा सच्ची मुच्ची जदों वड्डा भरा पिता नूं कवे कि पिता जी मेरी कोई गल नहीं, तुसी छोटे नूं बूट लै दिओ, छोटे नूं पैंट लै दिओ, छोटे नूं जराबां लै दिओ, तुसी छोटे नूं कुछ खाण लई जो मंगदा है वो लै दिओ। तुसी सोचदे पिता दी अखां 'च हंझू होणगे भी मैं एडा वड्डा बाप कि उहदा पुत्तर एडा लायक है। नलायक पुत्तर होण, तुहानूं पता है बाप दे अखां 'च हंझू आउंदे ने भी ये जम कित्थों पिया। ते जे पुत्तर होवे लायक ते हंझू तां भी आउंदे ने, पर उदों फिर रब वल हाथ उठते ने भी सच्चे पातशाह तू मेरे किन्ने क चंगे भाग लिखे ने कि मैनू एडी नेक संतान दिती है। बहुता कुछ करन दी लोड़ नहीं है। जिस दर ते तुसीं आए हो, ना तुहाडा गुरु बोला है ना तुहाडा गुरु अन्ना है, वो घट घट के करो कृपा, घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, वो सब जानता है। सो आप लड़ीवार कथा नाल जुड़िए। तुसीं आए हो और एक गल तुसीं नोट कीती होनी है, तुहानूं सारा गुरुद्वारा साफ नज़र आया। पर तुहानूं कोई ऐसा व्यक्ति मिलिया जिहड़ा कहे जी इत्थे पकौड़े नहीं हैगे, मैं तो मुड़ के चलिया। मैं फिर बेनती करा, साडियां गलतियां सी, मत्था टेकण आया नूं कहिंदे सी नहीं नहीं तुसीं ब्रैड पकौड़े खाओ, मत्था टेकण दा की है ना। सब तो वड्डी सेवा है। मैं हुण भी अज भी बेनती करांगा, जिहड़े वीर चाहुंदे ने गुरु की कृपा लैनी, अज तुसीं संगत वेखी है, अगे तो फैसला कर लो कि मैं बंगला साहब जाना है, मैं गड्डियां पार्किंग लवाउणियां ने, मैं जोड़ा घर कहना है कमेटी नूं कि सानू जगह दिओ जी, असीं जोड़ा घर बनाउने आ, संगत दे जोड़े गवाचदे ने। वो कहंदे नहीं जी पट्ठी लाउण दिओ सानू। पुछो भी पल्लिओ की पाएगा, पल्लिओ ने कुछ नहीं जे पाउणा। मैं कौड़ी गल तुहानूं कहां, मैं बड़े वेखे ने यह जी सेवा करते हैं, बाद च पूछा भी काम धंधा की है, पता लगा वो भी इहो ही है, काम धंधा भी इहो ही है। पूछो पल्लियों की पाएगा, कुछ भी नहीं। फिर संगत नूं क्यों रोकेगा बई। अज तुसी बंगला सब कुछ खाण पीण नहीं आए, खाण पीण लई लंगर सारी रात चलेगा, सारी रात चलदा रहा है। अज तुहाडी सारियां दी इक्को ही तमन्ना है भी गुरु के दर्शन जरूर हो जान, अगले दरवाजे तो हो जान, पिछले दरवाजे तो हो जान, टैंपरेरी हो जान, VIP हो जान, बस दर्शन हो जान। जी आया तुसीं आए हो, महाराज तुहाडीआं सारियां दीआं झोलियां भरन। इसे तरह ही फिर अगला साल साडी जिंदगी च आवे, असी फिर इसे तरह बख्शिशां लईए, सारा साल गुरु नाल जुड़ के रहा जे। अज आए हो ना,
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਪਖਿਓ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਚੱਲਿਓ ਜਿਕਰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦੇਸ਼, ਕਹੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਓ ਵਸੇਸ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਣ ਕੀਨਾ, ਕਰਿਓ ਸੁਣਾਵਣ ਜਸ ਜਸ ਚੀਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਕਹੈ, ਦੇਸ਼ ਗਿਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਆਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਕਹੈ, ਦੇਸ਼ ਗਿਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਆਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਕਤ ਪੰਡਤ ਤਹਾਂ ਮਹਾਨੀ, ਪੜਨ ਦੇਤ ਨਹਿ ਸਤ ਗੁਰ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ।
बड़े बड़े सियाणे पढ़े लिखे वेदां दे, सिमरतियां दे, शास्त्रां दे, पुराणां दे, वो जिहड़े उपनिषद ने, जिहड़े हिंदू धर्म के होर पुरातन ग्रंथ ने, उन्हां दे उत्थे ज्ञाता रहिंदे सी। पर उन्हां दी एक गल, जिवें मैं रोज़ ही बोलदा रहना, पंजाबी बोलो जी, गुरमुखी पढ़ाओ जी, गुरु ग्रंथ साहब दे चरनी लगो जी, पर इहदा अर्थ कदे इदां ना सोचना कि मैं अंग्रेजी दे विरोध हाँ, मैं हिंदी दे विरोध हाँ, मैं किसी भाषा दे विरोध नहीं हाँ। पर मैं एक गल जरूर चाहुंदा भी गुरुद्वारे आउण वाले हो, घट्टो घट्ट तुहानूं गुरबाणी तां पढ़नी आवे। जिहड़ी बाणी दे कीर्तन नूं तुसीं लख सवा लख भेटा देनी शुरू करती, तुहानूं उस बाणी दे अर्थ तां आउंदे होण। रागी सिंह आया, लख सवा लख रुपया भेटा लैके गांह गया, 4 शब्द पढ़े उन्हें, 15 मिनट का तो वाहिगुरू करते हैं अजकल। वैसे चाहिए जरूर है कि जे घंटे दे 51,000 होण ना, तो जिन्ने मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन करन को ज्ञानी जी इन्ने पैसे घटा दिओ, क्योंकि सिमरन तो तुसीं भी कीता है। वो कहते ने नाम जपो जी, पुछो तुसीं नहीं जप रहे, इन्ने पैसे लैस कर दिओ, लै मुड़ के नहीं वाहिगुरू वाहिगुरू कर दे। कदे सुने दरबार साहब दे विच वाहिगुरू वाहिगुरू कर दे? कीर्तन अपनी जगह है। हुण जे मैं कथा च वाहिगुरू वाहिगुरू करा तो फिर वाहिगुरू वाहिगुरू वाले नूं कहो भी तुसीं कथा कर लो। सिमरन दी अपनी महिमा है, कोई दुनिया च सिमरन दी महिमा नूं घटा नहीं सकदा। सिमरन दा वखरा अपनी जिंदगी च समा नियत करो, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो, पर जदों कीर्तन करो, कीर्तन का सत्कार करो। कीर्तन की अपनी मर्यादा है। कथा करनी है, कथा का अपना सन्मान है। तुसी लैक्चर करना है, लैक्चर का अपना कि उहदे विच जिहड़ा तुसी बोलना है, उहदे विच उहनूं अंग्रेजी च फ्लो कहंदे ने, ते साडी जिहड़ी गुरमत की शब्दावली है उहदे विच कहंदे ने रवानगी, थोड़ी तेजी होनी चाहिए है। जिहड़ी मैं कथा करदा, जे मैं तेज तेज बोलांगा ये कथा नहीं रहेगी, ये लैक्चर बन जाएगा। जे मैं गाउण लग जावांगा तो कीर्तन बन जाएगा। तो जे इहदे विच फिर मैं वो जिवें कवि करते हैं, कल्पनावां करांगा तो मैं कवि बन जाऊंगा। कवि किनू कहते हैं? लड़की लड़के का विआह हो रहा है तो कवि कहता जी मैं तो सेरा पढ़ना ही पढ़ना है, लो भाई तू पढ़ ला। हुण वेखो ने शुरू कित्थों कीता, कहता दादी जिहड़ी स्वर्गा चों फुੱਲ लैके आ रही है, ये कवि का काम है। पुछो स्वर्ग चों दादी वापस आ जाएगी तो फुੱਲ किहड़े ने उत्थे? गैंडे दे ने, गुलाब दे ने, चमेली दे ने, मतलब झूठ ही बोली जाना बस। कल्पनावां कवियां दे कोल हुंदियां ने, पर जिहड़े कवि सच दे आधारित कल्पना करते हैं वो नवाजे जाते हैं। तुहानूं पता है सेरा सिक्ख्या का विरोध क्यों होया? इसे करके कि उहदे च कल्पनावां कीतियां जांदियां ने, पर जदों पौंटा साहब गुरु कलगीधर पातशाह दे जोड़ मेले मनाए जाते हैं, कवि दरबार हुंदे ने, दिल्ली कमेटी भी रखती है कवियां दा टाइम, पर उत्थे कल्पनावां नहीं हुंदियां। सच नूं जे तुसी कविता विच कहने हो तो तुसी सन्मानयोग कवि हो, तो जे एवें कल्पनावां उडारियां भरनियां शुरू कर दित्तियां, अद्धा कोई झूठ रख लिया थले उहदे, फिर तुसी नवाजे नहीं जाओगे। जदों इदां सेरा सिक्ख्या पढ़ी तो समाज ने कहा भी नहीं कोई लोड़ नहीं हैगी। इस सेरा सिक्ख्या दी गुरबाणी दियां 4 लावां तो बाद
कोई सेरा नहीं चाहिए, कोई सिक्ख्या नहीं चाहिए। उत्थे मैं बेनती कर रहा सी, जिवें मैं कहना भी पंजाबी पढ़ो, कश्मीर विच हिंदू सन, सनातनी सन, ब्राह्मण सन, वो कहते सी संस्कृत पढ़ो। वेखो मैं एक आप जी नूं बेनती करा, अगर गुरुद्वारे दा ग्रंथी सिंह गुरुद्वारे दे विच बह के तुहानूं कवे गुरुद्वारे दी मर्यादा दा पालन करो, ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। मंदिर विच बैठा पंडित पुजारी साहब, कोई विद्वान ब्राह्मण उथे मत्था टेकन आया नूं कवे कि भाई आरती करया करो, तिलक लाया करो, जनेऊ उतारना नहीं, हिंदू धर्म के नियमां की पालना करनी है, ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। इसी तरह मस्जिद विच है, जे एक मौलवी कवे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो रोजे रखो तो की पाप है जी? उसकी ड्यूटी है, उन्होंने करनी, कहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं हुंदा कि वह दूजे धर्म के विरुद्ध है। हाँ, जे वह दूजे धर्म के विरुद्ध बोलता है, ये पाप है। तुसीं अपने धर्म की गल करो, ये पुण्य है। सिखा ने कहा भी महाराज असी कश्मीर विच रहने आ, कश्मीर विच सिख भी बहुत ने, पर कश्मीर विच एक मुश्किल आउंदी है भी उत्थे पंडित भी बहुत ने। पंडित जिहड़े ने वो संस्कृत पढ़ाउंदे ने, वो कहते ने भी जे तुसी कोई वेद मंत्र करना है, जे कोई तुसी पाठ पूजा करनी है तो संस्कृत विच करो, क्योंकि ये देव भाषा है, ये देवतियां की बोली है। एक कथा नूं बड़े ध्यान नाल सुनियो। मैनू भी ना आप जी दे सामने कथा ते बैठण तो पहला ये गल समझनी पई भी ये गल किवें ठीक हो सकती है कि आपां नूं इदां भी ना लगे कि संस्कृत नूं माड़ा कहा जा रहा, आपां नूं इदां भी ना लगे कि इत्थे पंजाबी गुरमुखी जिहड़ी है उहनूं घटा के दस्सिया जा रहा है। हर भाषा का अपना सन्मान है। जिहड़ा साडा धर्म है ना, वो कहंदा तुहाडा तुहानूं खूब, साडा सानूं खूब। आपां नूं रल के रहना सीखना चाहिए। तुसीं 2 भरावां दी गल वेखी होएगी। हुण एक भरा कवे जी मेरे बच्चे सोहणे ने, मेरे बच्चे सियाणे ने, मेरी घरवाली नूं तो बड़ी अकल है। तो दूजा भरा की कवे भी मेरे बच्चे भी कमले ने, मेरे बच्चे भी कोझे ने, मेरी घरवाली भी पागल है, तां दिन निकलणगे? नहीं। जदों तुसी दोनों भरा दा, दराणी जठानी दा ते दोनों परिवारों के बच्चों का बराबर सन्मान करोगे, ये रिश्ता टुट ही नहीं सकता। फिर रिश्ता नहीं टुटता। जदों मैं तुहानूं घटाउण की कोशिश करांगा उदों रिश्ता टुट जाएगा। जे मैं तुहाडा सन्मान करा, तुसीं मेरा सन्मान करो, दसो होर दुनिया दे विच है भी की है? इस कथा नूं सुनियो। संस्कृत नूं घटाया नहीं, पर गुरमुखी दी, पंजाबी दी इन्नी प्रौढ़ता कीती है भी बा कमाल है। सिखा ने कहा भी महाराज वो सानू बाणी पढ़न तो रोकते ने कि तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी जिहड़ी है ये संस्कृत विच नहीं, ये भाखा है, ये आम लोगों की बोली है। आम बोली दे विच पाठ पूजा करोगे ते रब खुश नहीं होएगा। संस्कृत सुर बाणी जानो, मनुख गिरा पाखा एह मानो। संस्कृत जेड़ी ये सुर बाणी है, देवतियां की बाणी है। जेड़ी भाखा है ये लोकां की बाणी है। भाव जे पंजाबी बोलोगे ये लोकां की बोली है।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। क्यों तुम पठो कहाँ फल लागे, नित नमित के कर्म न त्यागे। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਪਠੋ ਕਹਾਂ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, इत्यादक सब हूँ न सुनावे, गुरमत सिखी ते सो हटावे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, श्री अर्जन सुन सभा मजारा, माधो सोडी निकट हकारा। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, श्री मुख ते पुर मावन कीना, गुरमत मह तू अह पर बीना। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਸੋਢੀ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਊੜਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਐੜਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਈੜੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਡੱਬਾ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਟਕੀ ਜੀ ਬੱਧੀ, ਪਟਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਤਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕੇਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ। मैं उन्होंने पूछा, मैं काका तू दस्तार नहीं सजाता? कहता जी इधर उधर को जाना पड़ता है जी। वो हिंदी ते उतर आया। मैं कहा भरावा मैं यूपी तो नहीं हाँ, मैं पंजाब तो हाँ, मैं गुरुद्वारे दे विच रहना। कहता जी एड्रैस दसो। मैं कहा A1 मेरे घर का नंबर है। कहता जी अगे अगे। मैं कहा भी तेनों पता ही होना है गुरुद्वारा। कहता जी मैनू नहीं पता किहड़ा गुरुद्वारा है। दिल्ली दे जम्मे बच्चे नू नहीं पता कि रकाबगंज भी गुरुद्वारा है। तो मेरा ख्याल हेमा मालिनी के जवाक पुछ लेता तो उन्हें डेट ऑफ बर्थ भी दस देना सी। पता की कर राज करेगा खालसा। हो गया राज। हेमा मालिनी के जवाकों की डेट ऑफ बर्थ याद रखो तो राज तुहाडा होएगा। राज कीता तालिबाना ने। एक बंदूक मोढे ते, एक बंदूक हाथ च, एक हाथ च उन्होंने बच्चा फड़िया तो वापस आए ने जिदन उन्होंने वापस अपनी सल्तनत संभाली है। शस्त्रन के अधीन है राज।
मैनू खालसा जी ये नहीं कि आप क्यों कहने कि राज करेगा खालसा, साडा संकल्प है। अज तो थोड़ा पढ़न लगे असी, किन्ने 100 साल हो गए साडे बजुर्गों ने ये दोहरे पढ़ने शुरू किए, उस तो बाद राज भी किया। 40 साल तो कल्ले महाराजा रणजीत सिंह ने किया। कल रात पंजाबी बाग टकाना साहब एक बच्ची ने पूरा जफरनामा सुनाया। हालांकि मैनू इस गल का इतराज है कि जिहड़ी बच्ची की मां सी ना, जिन्नी उन्होंने नॉलेज सी, क्योंकि मैं समझ गया सी कि उन्होंने बच्ची को पढ़ाया भी उन्हें ही है, सिखाया भी उन्हें ही है। वो सवाल पूछती है, कुड़ी बच्ची जवाब देती है, पर मैं समझिया भी ये भी एक ना जिदा एक प्रोफैशनल ही होंदा है भी भैने तू अज टीवी के सामने बहना है तो तू थोड़ा जिहा इदां दा हाव भाव बना के आउंदी कि जिहड़ियां अजकल बच्चियां फैशनेबल ने, उन्हां नूं लगदा कि पढ़ लिख के सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ भी जीवन बतीत किया जा सकता है। एक कमजोरी जरूर सी कि मां ने कोई फैशन की कसर नहीं छड़ी। एक चंगे पक्ष के नाल नाल जे किते इस पक्ष नूं पूरा कर दी तो मैनूं इदां लगदा सी भी कल दा दीवान उस बच्ची दे समझ लो भी सब तो वध जस उहने खटिया। हर गल दा बच्ची ने सवाल का जवाब दिता। एक सवाल उहदा गलत सी कि जो पूछया भी शायद पता नहीं लड़की की मदर का नाम मेरे ख्याल नानकी कौर सी, तो जो पूछा भी गुरु नानक साहब की भैन का नाम की है, तो मेरे ख्याल उत्थे बच्ची कन्फ्यूज हुई, उसकी माँ का नाम नानकी कौर सी, वो कहती जी नानकी कौर। हालांकि कला नाम नानकी, बाकी कोई सवाल गलत नहीं सी। मैं बैठा सी, खालसा जी जे तुसी चाहुंदे हो तुहाडा भविख ठीक होवे, जरूरत इस गल दी है तुसी भजो पैसे दे मगर रज के भजो, पर अज एक गल गुरु नूं कह के जाओ कि गुरु जी मैनू विश्वास है कि मेरे मरण तक ये बच्चे मेरे कहने च होणगे, मेरे पैरों थले हाथ रखणगे, ये तेरे सिख बन के रहणगे, तो तू मेरी झोली भर दे। आपां उन्हां बच्चिआं नूं माल इकट्ठा करके दे रहे हैं जिहड़े बच्चे सारी सारी रात हुक्का पींदे ने, शराबा पींदे ने। जे मैं गल करा तो गल शोभा नहीं दिंदी। अज छोटी छोटी उम्र के बच्चे उन्होंने मौत खा रही है, लड़के मरी जाते ने, नशे करके मरी जाते ने। तो जे किते 10-15 साल बच्चों ना गुजारे होंदे आ दिन नहीं सी वेखने पैने। हो सकता बच्चे की इन्नी उम्र होंदी पर तुहानूं ये दस्सण लग्या शर्म नहीं सी आउणी कि बच्चा मरिया किवें है। मेरी गल नाल सहमत हो? कई बारी ना किसी के घर जाके यही कहीदा है काका मर गया जी, बड़ा माड़ा होया। अगली गल पुछी दी नहीं भी मरिया किवें है, क्योंकि घरदियां कोल भी दस्सण वास्ते शर्मिंदगी तो इलावा कुछ नहीं है। वो की कहण भी काका की करदा मर गया जी, समैक पींदा मर गया। छोटी उम्र सी, 4-4 बोतलां शराब दियां पी जांदा सी तां मर गया। फिर असी भी सियाणे आ, असी कहिंदे ही नहीं कि एको गल ही कही जाईदी है, वेखो जी रब दा भाणा है जी, काका चला गया जी। पर पता तुहानूं भी ते पता मैनूं भी है
पर ਉਹੀ ਬੱਚਾ अगर 24-25 साल का मरदा, हर बंदे ने जाके कहना सी भी जी तुहाडा बच्चा बहुत नेक सी। वो जरूर महाराज के चरणों च गया होएगा, तुसीं ना रोवो, तुहाडा बच्चा जाके गुरुद्वारे सेवा बहुत करदा सी। इहदा अर्थ ये नहीं कि जिहड़े सेवा करते हैं उन्हां दे बच्चों लई मैं कुछ कह रहा नहीं। मैं तां तुहानूं ये गल कही है कि मरण लखाए मंडल में आए। जिहड़ा भी बच्चा दुनिया में जम्मिया उहदी उम्र सीमित है, 25 भी हो सकती, 75 भी हो सकती है, 105 भी हो सकती है। पर जे नेकी करदा बच्चा जाए तो दुनिया शोभा करेगी, तो जे बच्चा बदी करदा जाएगा तुसीं पुछण जोगे नहीं होवोगे, घर वाले दसण जोगे नहीं होणगे भी काका मरिया किवें है। मंगो गुरु कोलों, कोठियां मंगो, कारां मंगो, धन दौलत मंगो, पर महाराज नूं कहो महाराज पहली गल मेरे पुत्रां नूं सिक्खी देना, मेरे पुत्र नेक होण। एक इत्थे मैं बहुता नहीं कहना चाहता, एक आदमी वो कहता जी ज्ञानी जी दे बच्चे ते कहता जी उत्थे पता नहीं उन्हें किहड़े किहड़े बिजनेस गिण दिते। मैनू उदों करोना सी, मैनू इत्थे बैठ के कथा करनी पई कि अज तक मेरे बच्चों ने गैस स्टेशन इस करके नहीं लिया कि उत्थे सिगरट वेचनी पैंदी है, घट्टो घट्ट बीयर जरूर वेचनी पैंदी है। मैं क्या पुत्र ये काम ना करियो, तुहानूं विजय गुरुद्वारे तो मिले ने, तुहानूं ग्रीन कार्ड भी गुरुद्वारा बाबा मक्खण शाह लबाणे तो मिले ने। जे इथों तक रब तुहानूं लैके आए तो रोटी अगे भी देगा। तो महाराज ने ऐसा उन्होंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की किरत बख्शी भी कोई घाटा है ही नहीं। मैं फिर उन्होंने नेता नूं कहा, मैं कहा तेनों तो यही नहीं पता मेरे बच्चे करते की ने। आपां ये मंगीए क्योंकि जिन्होंने तुसी कारां दे के जानियां, कोठियां दे के जानियां, ये तो मन लीए ना आप नहीं रहना, तो साडियां चीज़ां बच्चों को जानियां ने। तो ये तो कहो ना गुरु भी वारस जरूर रखी, उन्होंने वे साडे हुंदे ही वारस दुनिया तो चले जान, नशे करते, चिट्टे खांदे, हुक्के पींदे, तो जां लोकां दीयां धीआं भैणां पिछे गैंगवार करते मर जान, उन्हां बच्चों की मौत भी लानत होएगी तो सानू प्यो नूं भी लानत होएगी भी इहो जिहे जवाक असीं जम्मे सी। आओ गुरु कोलों हर चीज़ मंगो, अज भी मंगियो, पर यह जरूर चीज़ मंगियो कि महाराज जिन्होंने ये चीज़ां असीं दे के जानियां ने वो बच्चे नेक दिया जे, वो बच्चे लायक दिया जे, वो बच्चे तुहाडे सिख होण। गुरु के लाला ने नीहां विच खलो के साडे वास्ते मील पत्थर बनाया है। कोई डर, कोई लालच उन्हां बच्चियां नूं धर्म तो नहीं डेग सकिया। आपां जतन करिए, गारंटी नहीं है कि मैं कहां जी मेरे बच्चे तो ठीक ही रहणगे जी। सियाणे कहंदे ने दुध ते बुध कदों फुट जाए की पता है, किहदी मत कदों मारी जावे की पता है। पर जदों हाथ जोड़न ते ही आए आ ते हाथ ते लम्मे करके जोड़िए ना भी महाराज कोठी भी दई ते कोठी च रहन वाला पुत्र भी दई, जिहड़ा कोठी च बैठा शोभा पावे। मेरे जाण तो बाद भी उस घर च जपजी साहब का पाठ होवे। मंग लो, मंगण च की अर्ज है, देना ना देना उसकी मर्जी है, मंगो तो ठीक। साडे मंगण विच भी जदों बेईमानी आई ना तो फिर गुरु ने साडे तो मुंह मोड़ लिया, फिर गुरु ने मुंह मोड़ लिया भी ये तो मंगण लगा ही बेईमान है। वो कहंदा जी मेरे भावें न्याणे सिर मनाउण, हुक्के पीण, शराबां पीण, गैंगवार करन, लोड़ सिर पाड़न,
मैं भावें ठाणे रवां, तू बाबा दे दे बस। वो समझ आ गई बाबे नूं भी ये ते बेईमान है। मैंने कहा, महाराज ने कहा ठीक है भाई, क्योंकि वह तो सुभाव है, वो जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दह है। उन्हें सब नूं देना है, चंगे माड़े सारे जीव उहदे ही ने, बुरे भले हम थारे। कौन भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजया। हाँ जी। अब हम तोहे बचन के माही, पाई शक्त मिटे कब नाही। सच्चे पातशाह ने भाई माधो सोढ़ी नूं कहा भी तू कश्मीर जाना है, तेरे बचना विच ताकत होएगी, तेरे विच गल करन दी शक्ति होएगी, ते तू उत्थे जाके सिੱਖੀ दा प्रचार करना है। ਜਿਹੜੇ पंडित ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण कहन कि पंजाबी बोली जिहड़ी है, गुरमुखी जिहड़ी है, ये लोकां दी भाषा है, संस्कृत ये देवतियां दी भाषा है, ते भाई माधो जी तुसी जवाब देना है उन्होंने। वेखो जवाब कैसा दिता फिर। हाँ जी। पर्वत बिखै देश कश्मीर, सिੱਖੀ जाए दृढ़ावो तीर। पहाड़ां दे विच देश कश्मीर है, उथे जाओ ते सिੱਖੀ दा प्रचार करो। गुरमत को की जय विस्तार, सिमर सत नाम सुख सार। उथे जाके गुरमत दा प्रचार करना है, उथे जाके सिੱਖੀ दा प्रसार करना है, उथे जाके सब नूं कहना है कि तुसी भाई सतनाम ते वाहिगुरू शब्द दा आराधन करो, भगती करो। सुन माधो पुन बाक बखाने, तहाँ भगत को विपरन जाने। भाई माधो कहन लगा महाराज पंडितां नूं तां भगती बारे पता ही नहीं है। वेखो कैसा ही गुरमत दी गल है। तुसी कदे भी सनातन मत विच अमूमन तुसी वेख्या होएगा कि कर्म कांडां दा जिक्र है। ये हिंदू वीर भी कहते ने, कहते ज्ञानी जी गुरुद्वारे आईदा है ना, एक जगह मत्था टेक के ते बह जाईदा है। कहते वो कहते जी इत्थे मत्था टेको, इत्थे इन्ने पैसे मत्था टेको, इत्थे मत्था टेको, इत्थे इन्ने पैसे मत्था टेको। हुण ये उन्हां दी मर्यादा है, आपां ते नहीं टीका टिप्पणी कर सकते कि वो इदां क्यों करते हैं, पर यह सच है। गुरुद्वारे दे विच इस तरह नहीं है। इत्थे तां सगों जे तुसी पौड़ियां नूं मत्था टेकदे हो, फिर तुसी जोड़ियां नूं मत्था टेकदे हो तो रोकिया जाता है। नहीं, मत्था सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकना है। बाकी रस्ते ने तुहानूं इत्थों तक लैके आउण वाले, उन्होंने साफ सुथरा रखो, यही बहुत वड्डी सेवा है। हाँ जी। कर्म कांड में सो लपटाए, नह उपासना मन मह ल्याए। महाराज उन्हां विच तां कर्म कांड ने, उन्हां विच भगती दा बहुता प्राधान नहीं। वो भगती वास्ते बहुती गल नहीं करते। वो तो यही कहते हैं भी आ सिक्के जाके तुसी वो नदी च सुट दिओ, सवेरे उठोगे सूरज नूं पानी पा दिओ। बहुता जिहड़ा प्रचार वो कर्म कांड का प्रचार है भी कुछ धर्म के इदां दे कर्म करो, कुछ धर्म के इदां दे कर्म करो। जिवें तुसीं वेख्या ही है, जदों बंदा मर जाता है अपना तो काम ही सीधा भी आपां जाने आ ते नाले जपजी साहब का पाठ करी जाईदा है, नाले चिखा चिणी जाईदी है। उन्ने क चिखा चिणी जाती, अरदास करके जकारे छड्ड के बंदा तोड़ दीदा है। पर सनातन मत दे विच किन्ना ही चिर उत्थे पूजा की जाती है। फिर फुल चुगन लग्या भी इदां ही हुंदा है। फिर जदों हड्डियां लैके जाईदियां, फुल लैके जाईदे, अस्त लैके जाईदे ने। अपने कीरतपुर साहब जाते ने, वैसे तो उत्थे भी जाण दी लोड़ नहीं। जिन्हां नूं सोझी है
ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸੋ ਭਗਤੀ ਜਾਣੈ, ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਤ ਜਿਮ ਅਣ ਜਾਣੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੈ ਜਬ ਤੁਵ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਉਪਾਸਣ ਕੋ ਉਪਜੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਾਪ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਮ ਵਿਪਰਨ ਪਿਆਰੀ, ਪਠ ਸੁਣੈ ਮਾਨੈ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਬੋਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾ ਭਰਾਵਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਆਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਓਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵੀਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ।
पर जो गुरबाणी पढ़नी है तुसी कहो जी मेरी गुरबाणी इदां दी होएगी ना, गुरबाणी नूं तुसी गलत नहीं पढ़ सकते। तुसी हिंदी च किसी शब्द नूं की बोलदे हो बोलो, पर इत्थे तुहानूं 5 प्यारे कहना होएगा, 4 साहिबजादे कहना होएगा, 40 मुक्ते कहना होएगा। 40 मुक्तियां थोड़ा कहोगे तुसी, मतलब थोड़ा भी मैं इदां बोलदा तो इदां ही चलेगा, नहीं। उहदे लई तुहानूं शुद्ध पंजाबी होनी चाहिए है, ताकि शुद्ध पाठ होवे, शुद्ध अरदास होवे। गुरु पिता जी ने भाई माधो नूं कश्मीर घल्लिया, उही गल होई, जिहड़े विद्वान पंडित सी वो आ गए, वो कहंदे जी ये गलत है। भाई माधो जी ने कहा दसो किवें गलत है? कहंदे जी ये जिहड़ी तुहाडी बाणी है ये गुरमुखी विच नहीं होनी चाहिए, पंजाबी विच नहीं होनी चाहिए। अगर यही बाणी संस्कृत विच होवे ते सानू परवान है। फिर उत्थे गुरु ने कला वरताई। भाई माधो ने एक गल पूछी कि तुसी जदों अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हो तो किहड़ी बोली च पढ़ते हो? जी संस्कृत विच। जदों लोकां नूं समझाउने हो उदों किहड़ी बोली च समझाउने हो? असीं उदों लोकां दी बोली च समझाउने आ। ते महाराज कहते फिर उदों फिर लोकां दी बोली चंगी हो जाती है। सतगुरु कृपा करन। अगली कथा जिहड़ी है ये आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुणीए। एक बार फिर सारिਆਂ ਨੂੰ ईसवी सन जो अज 2024 आरंभ होया है ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। सच्चे पातशाह कृपा करन, तुसी चढ़दी कला विच रहो, तुहाडा परिवार चढ़दी कला विच रवे, तुहाडे कारोबार चढ़दी कला विच रहन। बस मेरा एक तरला जरूर है कि सब कुछ मंगदिया बस इन्ना जरूर ध्यान रखियो कि बच्चे नहीं गवाचने चाहिए, क्योंकि तुहाडे घर दे असल निशान तुहाडे बच्चे ने, असल निशान ही तुहाडे बच्चे ने। बच्चे ना गवा लियो, जे बच्चे सामभ लोगे तो तुहाडे मरण तो बाद चीज़ां सामभियां जाणगियां। ते जे किते बच्चे साडे वेंदे वेंदे नशे खा के मर गए तो आपां की करांगे? ये चीज़ां ये घर सानू वड्ड वड्ड के खाणगे। मैं इन्ना क तरला जिहा ही है, मैं तो रोज़ लेना भी भाई आपां बच्चे संभालीए। मैं इधर ही कदे कहा भी तुसी कारोबार ना करो। मैं तो आप 18 घंटे सेवा दे विच रहना और पैसे भी लेना, मैं किहड़ा फ्री करदा। मेरे बच्चे भी दिन रात काम करते हैं, वो भी कमाते हैं, बड़ियां बड़ियां महंगियां गड्डियां ने उन्होंने कोले। मैं तो नहीं कहता उन्होंने बच्चों भी काका तुहानूं काम करन दी की लोड़ है। मैं कहना काम करो, पहला काम किरत करनी, दूजा नाम जपना, तीजा वंड छकना। वेखो जे तुहाडे कोल कुछ होएगा ना, किरत दा तुहानूं महत्व नहीं समझ आ रहा। एक बच्चे ने पंजाब तो मैनूं फोन किया, कहंदा जी मैं मकान बना रहा, मेरी मदद करो या करा दिओ। उह असीं भी किसी नूं कह देणगे भी मैं लोड़वंद हाँ। मैं अपने बच्चे नाल सलाह की तो मैनूं कहंदा पापा तुसीं मेरे वल्लों घल दिओ। हाँ तो जे मेरा बच्चा आप ही हैंड टू माउथ हुंदा तो कह सकदा सी 50,000 पापा तू घल दे। समर्थ बनो। तुहाडी शान ही इस गल विच है कि सिख अमीर ने, पर हुण गलती ये हो गई कि लोग सोचते ने सिख शराबी ने, सिख हुक्का पीण वाले ने, सिख चिट्टा पीण वाले ने। ये गलत हो गया। ये साडी शान नहीं। शान इस गल विच है कि तुसी हज़ारां हज़ारां एकड़ां दे अमरीका विच भी मालक हो, तुहाडे अपने चार्टर्ड जहाज ने, ये तुहाडी शान है। तुहाडा एक सरदार इंग्लैंड रहिंदा है, वो जिहड़े रंग दी कार कढदा घरों उस रंग की दस्तार भी बन्नदा है, ये तुहाडी शान है। तो कार तो टोपी पा के भी चलाई जा सकती, फिर आपां की लेना है? इदां दे गोरे तो बहुत होणगे। अगर वो अपने कार दे रंग की दस्तार बन के बाहर निकलदा है तो ये तुहाडे सारियां वास्ते प्राउड है, मेरे वास्ते भी है। हालांकि मैं उस रोबन सिंह नूं मिलिया नहीं कदे,
मैं शायद ना ठीक बोलता होवां तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਬਨ ਸਿੰਘ है और मैं आमने सामने कदे मिलिया भी नहीं, पर मैनू भी माण है भी मेरा कोई सिख भरा इदां दा भी हैगा कि ਉਹਦੀ पग दे रंग दे नाल भी कारां चलदियां ने। इदां दे सिख होने चाहिए। तुसीं भी इदां दे होवो, तुहाडे बच्चे भी इदां दे होण। इस साल सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਵਿੱਚ खुशियां लैके आवे। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी